Hello everyone, welcome to Apti Plus, the Academy for Civil Services. Today we are here to discuss the Orissa Administrative Services current affairs, and these are the current affairs of last 6 months, that is from August 2024 to December 2024. So without wasting time, let us move ahead. In this session, the current affairs will be covered. Some of the current affairs will be covered in the MCQ mode and others in the content format. And we will be going very fast so that we could cover maximum amount of current affairs. Now moving ahead, onto the question. The question number 1, Central Railways has installed a floating solar power plant of 10 megawatts capacity in which of the following lakes? Number 1, Igatpuri Lake, Pukude Lake, Kodaikanal Lake, and D, Berijam Lake. तो इसका आंसर है आपका इगतपुरी लेक. इगतपुरी लेक कहाँ है? हमें ये देखना है. It's a lake in Western Ghats and it's a first of its kind initiative by Indian Railways. तो हमें ये भी पता होना चाहिए which agency is doing this initiative of floating solar power plant by Indian Railways, and it is in Western Ghats in Maharashtra, Igatpuri Lake. So we should also know the location of the lake. Next news is there is a 3-month ban on the entry of tourists on Bhitarkanika National Park. क्यों ये ban लगाया गया? Because it's a mating season for the saltwater crocodile, and this ban came into force from 1st May. So we should know about this national park, that is Bhitarkanika National Park and the saltwater crocodile. तो हम देख सकते हैं कि बैन कब से इम्पोज हुआ है? 31 जुलाई से. ये आपको कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. अब इसमें क्या हमें बैन में करेंगे? हम मैकेनाइज्ड बोट से जो साउंड होता है या कोई टूरिस्ट आते हैं, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बिकॉज क्रोकोडाइल्स यूजुअली during their breeding season become very aggressive. So to stop that attacks on the people, that's why this ban is enforced. Now let us know something about the saltwater crocodile. First of the thing is it is largest of the living crocodilians. Means जितनी भी वर्ल्ड में 23 स्पीशीज मिलती है क्रोकोडाइल की, उसमें सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है. एंड इट इज अपार्ट फ्रॉम इट्स अ सॉल्ट वाटर. सॉल्ट वाटर मीन्स कि जो खारे पानी में रहता है, एस्चुरीज में रहता है या कोस्ट के अलोंग रहता है. और इंडिया में ऐसे कौन कौन सी मेन सॉल्ट वाटर कौन कौन सी जगहों पे मिलते हैं? द फर्स्ट इज सुंदरबंस, that is near West Bengal, Bhitarkanika National Park, and your Andaman Nicobar Islands. So these are the major locations where we found saltwater crocodile. Apart from this, we should also know कि which all crocodilian species are native to Indian subcontinent. देखिए यहाँ पे word use हुआ है native. नेटिव मीन्स जो यहीं की है एक्चुअली में. तो हमारी जो स्पीशीज हैं और जो इंडिया में मिलती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो है आपकी मगर क्रोकोडाइल, घड़ियाल एंड योर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. देन द IUCN स्टेटस क्या है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का? इट इज लीस्ट कंसर्न. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लाई ऑफ एंटी टीबी ड्रग्स. रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि हर स्टेट को एंटी टीबी ड्रग्स की फ्रॉम द सेंटर सप्लाई नहीं मिल पा रही थी ड्यू टू लैक ऑफ ड्रग्स. एज अ रिजल्ट अभी अपना ओडिशा गवर्नमेंट ने एक प्लान किया है टू प्रोक्योर एंटी टीबी ड्रग्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द ओडिशा स्टेट मेडिकल कॉर्पोरेशन, जो कि अगले साल से लागू होगा. तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी कॉर्पोरेशन के साथ हम टीबी ड्रग मंगा रहे हैं, एंटी टीबी ड्रग. एंड बिफोर दैट द सप्लाई हैज कम फ्रॉम national under the national TB elimination program from the center. Now TB के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि TB is a communicable disease. It affects our lungs. It is a bacterial infection caused by Mycobacterium tuberculosis. As well as there are largely two types of TB that we see. Number one is latent TB, means the infection or the bacteria is residing in your body, but it is not in its active stage. It is not showing its symptom. And the other type of TB is active TB disease, means the bacteria is there in your body and it is showing the symptoms, and you can cause TB to the further other person also if you cough and other
symptoms like there will be weight loss, fatigue, fever. Okay, apart from this, we should also know that India has begun with its BPAL regime for XDR and MDR TB. अब ये XDR MDR TB क्या है? It is the drug resistance TB that has developed amongst the people in India. So XDR is your extensive drug resistance TB and it is multi-drug resistant TB is MDR. MDR means जो TB का बैक्टीरिया है आपका बहुत सारी ड्रग्स के अगेंस्ट इम्यून हो चुका है, तो ड्रग्स काम करना कब बंद हो गए हैं. अगर 2 से ज्यादा ड्रग के अगेंस्ट इफ टीबी बैक्टीरिया हैज बिकम immune, then it becomes your XDR TB. So for that, India has begun the new regime called BPAL, where that different type of 3 medicines are provided. Now moving on, Ranjit Maji, an advocate for implementing the Forest Rights Act, received the prestigious शंभवी पुरस्कार 2024. तो 2024 का शंभवी पुरस्कार किसको मिला है? हमारा रंजीत माजी. ये क्या है? हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि शंभवी पुरस्कार क्या होता है. ये दिया जाता है बाय और इला पांडा फाउंडेशन एंड बंसीधार एंड इला पांडा फाउंडेशन. And what was the work for which Ranjit Maji has received this award is for empowering the 112 villages in Odisha Sundargarh district about the forest land rights along with the environmental protection. तो यहाँ के लोगों में उन्होंने जागरूकता जगाई about the forest land rights and it is the 11th edition. तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ये कौन सा एडिशन है? 11th edition. 2023 का अवार्ड किसे मिला है? आपका डॉक्टर मोहम्मद इमरान अली को. 11th एडिशन है आपका 2024 वाला, जो मिला है हमारे रंजीत माजी जी को. अपार्ट फ्रॉम दिस वी शुड ऑल्सो नो कि इसमें क्या अवार्ड में क्या मिलता है आपको? 2.5 लाख. तो ये अमाउंट भी इंपॉर्टेंट है. नाउ मूविंग ऑन, व्हाट इज दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट? इस पे भी क्वेश्चन बनता है. ये एक्ट कब आया? सबसे पहली चीज 2006 में दिस एक्ट केम इनटू फोर्स एंड इस एक्ट से जितनी भी फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, दे हैव बीन गिवन लैंड राइट्स टू लिव, टू फॉर द हैबिटेशन, फॉर लाइवलीहुड एंड अदर सोसाइटल नीड्स के लिए उनके अधिकारों का लीगल रिकॉग्निशन दिया गया पहली बार इसी कानून के द्वारा, जिसमें वो अपना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर सकते हैं जंगल में जाके एंड दे कैन लिव हैप्पीली. सो इट्स अ कंजर्वेशन ऑफ द लाइवलीहुड एंड द लैंड राइट्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज. एंड इसमें 2 टाइप के आपके राइट्स दिए जाते हैं, कलेक्टिव राइट, इंडिविजुअल राइट्स एंड कम्युनिटी राइट्स. मीन्स a right is given to the entire group or to an individual, that is to a family. So एक किस लोगों को दिया जाएगा? जो कि 75 years से उस एरिया में रह रहे हैं. तो for that they have to establish that they are living for long 75 years. And who is the authority that will process their claims? That is the Gram Sabha, that will initiate the process for determining that who will be given the forest right, whether it is community forest right or your individual forest right. So हमें ये कुछ चीजें facts पता होना चाहिए इस एक्ट के बारे में. Now next topic is Renew E-Fuel Private Limited. It's a subsidiary of Renew and Ajera, which will evaluate the development of a green ammonia production facility in Paradweep, Odisha. तो सबसे पहले what we have to remember is that Odisha is developing the green ammonia production facility where in Paradweep. So ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा. ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी ओडिशा में कहाँ डेवलप हो रही है? इन पाराद्वीप. अबाउट हाउ मच कैपेसिटी? दैट इज 1 लाख टन by 2030 and our target is that, and it is under योर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. अब क्यों ऐसा
बिकॉज हाइड्रोजन के साथ जब हम नाइट्रोजन को क्लब करते हैं देन वील गेट ammonia. Now it's a green ammonia because the production process, the entire production process is based on the renewable energy resources. That is green hydrogen and the nitrogen taken from the air, from the atmosphere. That is why it is called green ammonia production facility. Now let's see one more component under which this facility is being developed is your national hydrogen mission. See, there are two things. Green ammonia. Green ammonia क्या होता है? NH3. That is produced via renewable method. Another is hydrogen mission. तो अभी क्या कर रहा है इंडिया? हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल की तरफ ट्रांजिशन लेना है टू इंक्रीज आवर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. तो उसके लिए इंडिया ने एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था. दैट इज बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 15 अगस्त. तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डेट पूछी जाती है. अपार्ट फ्रॉम दैट द लॉन्च डेट ऑफ योर नेशनल हाइड्रोजन मिशन इज 15th August 2021 and it's a plan for establishing the green hydrogen ecosystem in the country. मीन्स हमारे यहाँ हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एंड टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब ऑफ प्रोडक्शन यूसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन. अब किसी भी चीज के आगे ग्रीन लग जाता है तो इट रिलेट्स टू इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द रिन्यूएबल रिसोर्सेस. नाउ मूविंग ऑन, व्हाट इज ग्रीन अमोनिया? ग्रीन अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? हमारा एक केमिकल यूज होता है जो लार्जली हम फर्टिलाइजर्स जब बनाते हैं नाइट्रोजनस उसमें यूज होता है. प्लस इट कैन बी ऑल्सो अ गुड एनर्जी रिसोर्स टू रन द इंजन. एज अ रिजल्ट तो हम एक अमोनिया फैसिलिटी बना रहे हैं. अमोनिया तो वैसे भी बनता है बट ग्रीन बना रहे हैं, तो ये समथिंग न्यू है पाराद्वीप में. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हेबर प्रोसेस, जो जिससे हम ग्रीन अमोनिया बनाते हैं. दैट इज यूजिंग हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर इलेक्ट्रोलिसिस एंड नाइट्रोजन सेपरेटेड फ्रॉम एयर. तो ये हमें ध्यान में रखना है, हेबर प्रोसेस ये जो नाम है. और नेक्स्ट न्यूज इज, लेट्स सी वन ऑफ द MCQ देखते हैं. द इनिशिएटिव ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट नोन एज बाला ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सेक्टर्स? A health, B transport, C education, D agriculture. And your answer is C education. Now let's see what is this Bala initiative. तो बाला मीन्स ये वो वाला बाला नहीं है जो हमने देखा था बाला मूवी में. इट्स बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड. मीन्स यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी क्लासरूम की वॉल्स होती हैं सारी, उनको एक एजुकेटिव टूल की तरह डेवलप करना है. एंड ये कौन कर रहा है? दैट इज योर ST and SC डिपार्टमेंट हैज पार्टनर्ड विद ऑर्गेनाइजेशन शिक्षार्थ टू ब्रिंग दिस प्रोग्राम. तो बाला किसके लिए है? आपका एजुकेशन सेक्टर के लिए. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज. That is Preeti Smita Bhoi of Odisha achieved a new world record at the International Weightlifting Federation World Youth Weightlifting Championship in Lima, Peru, while Joshna Sabar won the silver medal in the same category. तो हमारे दो एथलीट्स that is trained at the Kalinga Stadium of Odisha Weightlifting High Performance Center, they have won 2 awards. तो इसमें कौन अवार्ड मिला है किस किस को? हमारी प्रीति स्मिता भोई एंड अनदर इज जोशना. तो प्रीति स्मिता भोई को कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिला है? इन यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कैटेगरी, वर्ल्ड यूथ कैटेगरी में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है. एंड ये चैंपियनशिप कहाँ हुई है? इन लीमा पेरू. क्योंकि ये ओडिशा की है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओडिशा सिविल सर्विसेज. थोड़ा सा हम जान लेते हैं व्हाट इज दिस इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन. इट्स अ परमानेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट कंपोज्ड ऑफ 193 एफिलिएटेड नेशनल फेडरेशन. मींस एक ऑर्गेनाइजेशन है IWF. इसके कौन मेंबर्स है? जो हर कंट्री की अपनी नेशनल फेडरेशंस होती हैं वेटलिफ्ट, वो इसके मेंबर है. और ये इंटरनेशनल फेडरेशन किसकी मेंबर है? ओलंपिक कमेटी की.
ठीक है, तो हमें इसके बारे में बस इतना जानना है कि इस साल के जो अवार्ड्स, जो वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन हुए हैं वर्ल्ड के, वो कहाँ हुए हैं? लीमा पेरू में हुए हैं। ओडिशा से कौन मेडल, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? दैट इज ऑफ योर प्रीति स्मिता भोई ने। एंड जोशना ने सिल्वर मेडल जीता है इन दिस सेम वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कैटेगरी में। नाउ मूविंग ऑन, द चीफ मिनिस्टर लॉन्च द सीएम एस्पायर स्कीम which promises a wealth of opportunities for youth in government skilling institutions। तुम्हारे चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिससे कि हम स्किल ट्रेनिंग देंगे, न्यू करियर सेंटर्स बनाएंगे यूथ के लिए, रिसर्च फेलोशिप करेंगे मेरिटोरियस यूथ के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर विल बी certification in the provided in the ITIs student, as well as the Mukhyamantri Dakshata Puraskar will also be set up। So we just need to know कि हाँ एक सीएम स्कीम है, एस्पायर स्कीम है, किसके लिए है? स्किलिंग के लिए। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे बाला है, बाला इनिशिएटिव वी हैव सीन, इट वाज फॉर एजुकेशन। तो सीएम एस्पायर किसके लिए है? स्किलिंग इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रोवाइज करने के लिए, सो एज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ। नाउ मूविंग अहेड, आयुष्मान भारत। तो अभी ओडिशा ने आयुष्मान भारत आरोग्य जन आरोग्य योजना को लॉन्च करने वाला इस रिसेंटली एक्सेप्ट कर लिया है आफ्टर 6 years ऑफ इट्स लॉन्च। तो ये प्रोग्राम तो पहले लॉन्च हो गया था आयुष्मान भारत, बट उड़ीसा ने अभी कहा है कि हाँ हम लॉन्च इसे करेंगे। करेंटली उड़ीसा में कौन सी स्कीम चल रही थी? बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, जिसमें वी वर कवरिंग 1.03 करोड़ फैमिलीज। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उड़ीसा की कौन सी एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी। दैट इज बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना ऑफ द बीजेडी गवर्नमेंट। And this, because of this scheme, Odisha has not opted in the central scheme, but now Odisha has opted for this central scheme of Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana। इसका कवरेज जो आपका आयुष्मान भारत का होता है वो होता है इंश्योरेंस कवरेज, हेल्थ कवरेज ऑफ 5 लाख एंड 10 लाख मिलता है हमारा बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना फॉर वुमेन। तो हमें दोनों के अमाउंट भी पता होने चाहिए। Now let's see about this program। It's a largest, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है आयुष्मान भारत। इसमें हर फैमिली को 5 लाख रुपए मिलते हैं फॉर सेकेंडरी एंड दी टर्शरी केयर। कब लॉन्च हुआ था? 2018। तो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सम अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस पर फैमिली किसके लिए? टर्शरी एंड दी सेकेंडरी केयर के लिए। प्लस व्हाट एल्स, जैसे डे केयर ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, डायग्नोस्टिक, सर्जरी, ये सब आपका कवर होता है। इसमें बेनिफिशियरी कौन चूज करता है? इट्स अ एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम that targets beneficiary as according to the socio-economic caste census। तो हर स्टेट, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अपने बेनिफिशियरी की लिस्ट चूज करती हैं, बनाती हैं फ्रॉम सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा। प्लस एनएचए जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ऑफ दिस आयुष्मान भारत स्कीम, that is National Health Authority, it has provided flexibility to the states or the union territory to choose the beneficiaries not just from socio-economic caste census but from similar profiles, but those are not covered under your SECC। So we should also remember कि strict प्रोफाइलिंग नहीं है, ओनली फ्रॉम द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बट आउटसाइड ऑल्सो। नाउ लेट्स सी, अभी हमारा जो बजट आया उड़ीसा का 24-25 वाला, उसमें क्या क्या नई चीजें हुई हैं, क्या मेजर अलॉटमेंट्स हुए हैं, कितना पैसा दिया है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कुछ अमाउंट पता होने चाहिए। सबसे पहले 50 करोड़ अवार्ड अलॉट हुए हैं टू योर माँ तारिणी टेम्पल एट घटगांव। Apart from this, 10,000 crore has been allocated for Subhadra Yojana for Women Empowerment। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत ज्यादा अमाउंट है, तो हमें ये अमाउंट याद रखना है। 10,000 करोड़ किसको मिला है? सुभद्रा योजना। एक हमारा चावल के लिए समृद्ध कृषक योजना है,
परचेज ऑफ पैडी, जैसे एमएसपी टाइप ऑफ योजना, इसमें हमारा कितने क्विंटल पे है, एट द ₹3100 पर क्विंटल, इसके लिए हमारा अलॉटमेंट हुआ है 5000 करोड़, तो ये याद रखना है। ओडिया अस्मिता के लिए एक फंड बनाया है, उसके लिए 200 करोड़ दिए गए हैं। 156 करोड़ being provided for the Madhav Singh Hath Kharch Yojana to address the dropout rates among your tribal students. Apart from this, the important allocation that you can remember is rooftop solar प्रोजेक्ट, क्योंकि ये बहुत न्यूज में रहा है, पीएम सूर्य घर योजना, तो उसके अंदर स्टेट ने कितना पैसा दिया है आपका, 100 करोड़। तो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सुभद्रा योजना, समृद्ध कृषक योजना, एंड कितने क्विंटल का रेट है राइस का आपका प्रोक्योरमेंट का, योर 3100 रुपीज। अपार्ट फ्रॉम दिस 156 करोड़ फॉर माधो सिंह हाथकर्च फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, एंड रूफटॉप के लिए, रूफटॉप पे सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए अपने घरों में, उसके लिए कितना अलॉटमेंट हुआ है आपका, 100 करोड़ का। अदर some of the other allotments, let's see, for धर्मशाला कम गेस्ट हाउस फॉर अटेंडेंट्स ऑफ कैंसर पेशेंट्स के लिए एक गेस्ट हाउस है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए 18 करोड़ दिए गए हैं। एक कॉर्पस फंड बनाएंगे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल स्टैब्लिश करने के लिए, उसके लिए 200 करोड़ हैव बीन एलोकेटेड। फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीडियाट्रिक कैंसर फैसिलिटी, बच्चों के कैंसर के इलाज की फैसिलिटी के लिए 25 करोड़ हैव बीन गिवन। solar based street lighting at the panchayat level, for that your 10 crore have been allocated. ये याद रखना है कि महानदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर महानदी रिवर के संबलपुर एंड द कटक को हम बनाने वाले हैं वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट, एंड उसके लिए 50 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड। तो आपसे पूछ सकते हैं कहाँ पे वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट, महानदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर बनाया जा रहा है, इन योर संबलपुर एंड कटक। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओडिशा बाल भद्र जैविक चाषा मिशन टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो जैसे सिक्किम हमारा एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टेट है, इसी तरह इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट इज सिक्किम, तो इसी तरह हर स्टेट अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करने के लिए एक स्कीम चलाता है। तो ओडिशा का है जैविक चाषा मिशन, तो जैविक से ही आपको समझ जाना चाहिए, इट्स फॉर प्रमोशन ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। आयुष्मान भारत के लिए हमारे को ओडिशा गवर्नमेंट ने दिए हैं 500 करोड़। फॉर मेत्रु वंदना योजना इट्स 92 करोड़, 25 करोड़ फॉर प्रधानमंत्री फॉर राइजिंग इंडिया। ओके, सो दीज अलॉटमेंट्स, नंबर 1 एक कॉर्पस फंड बनेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है पीडियाट्रिक कैंसर हॉस्पिटल के लिए, प्लस ये जो घाट डेवलपमेंट हो रहा है कहाँ कहाँ पे, संबलपुर एंड कटक। जैविक चाषा मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे सिंपल पूछ लिया जा सकता है कौन सी चीज किस चीज के लिए है, कितना फंड, तो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा, देन इट विल बी आस्क्ड, बट सम स्पेसिफिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल सुभद्रा योजना, हर स्टेट आजकल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम्स चला रहा है, तो उड़ीसा की जो स्कीम है आपकी वो है सुभद्रा योजना। फॉर दैट द गवर्नमेंट हैज allocated 10,000 crore. It is very important. Now moving on into the MCQ section, that is India's humanitarian assistance Operation Sadbhav is associated with, हमने अभी एक humanitarian assistance program चलाया है। Number A, Myanmar, Laos and Vietnam, Iraq, Iran, Syria, Namibia, Botswana, Angola, Poland and Ukraine. And your answer is Myanmar, Laos and वियतनाम। ए, अभी वियतनाम इधर इन 3 जगहों पे म्यांमार लाओस में एक टाइफून योगी आया है, एंड इट इज अ कैटेगरी 5 स्टॉर्म, मींस अ वेरी सिवियर कैटेगरी that has been recorded for the 4th time in South China Sea. So to rescue the people of Indian origin or the Indian citizens, so India has launched Operation Sadbhav to deal with this typhoon Yagi. तो ये टाइफून का नाम भी we have to remember, and Operation Sadbhav is also very important. Now let's see this year's Odisha's economic survey 23-24 highlights.
सो फर्स्ट थिंग इज कि हमें अपनी इकोनॉमी उड़ीसा की कितनी है, दैट वी नीड टू नो, दैट इज 8.3 लाख करोड़ अकॉर्डिंग टू द एडवांस्ड एस्टिमेट्स। तो ये डेटा, ये फैक्ट सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा, द साइज ऑफ ओडिशास इकोनॉमी इन द प्रिसीडिंग ईयर। इंडिया उड़ीसा की क्या रैंक थी, 13th रैंक थी अकॉर्डिंग टू इट्स इकोनॉमी, मीन्स इन द लास्ट ईयर उड़ीसा की रैंकिंग थी 13 थी। दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अमंग्स ऑल द स्टेट्स। एंड ओडिशा का ग्रोथ रेट कितना रहा है 23-24 में, ऑफ 8.5%। ये तो आपको मतलब रट लेना है। इंडिया ने ग्रो किया है 8.2% ने, उड़ीसा ने उससे ज्यादा पे ग्रो किया है 8.5% पे। उड़ीसा की इकोनॉमी, यू नीड टू नो द जीएसडीपी रेट was 5.3 and it was 7th in all India level। तो एक होता है इकोनॉमी, एक होता है आपका जीएसडीपी रेट, मींस ग्रोथ। एक होता है आपका ग्रोथ, एक होता है जीएसडीपी, किस रेट से ग्रो कर रहा है। तो ये डिफरेंस और टर्मिनोलॉजी का यू शुड ऑलवेज रिमेंबर एंड मार्क अकॉर्डिंगली। नो, वी शुड ऑल्सो नो कि इसमें एग्रीकल्चर का कितना योगदान है, contribution of agriculture sector to the state gross value addition, that is 20.4% to the Odisha's economy, and industry sector 43.3%, and service sector contributes around 36.3%. So these are the some basic facts with respect to Odisha's economy, and इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका 8.3 लाख करोड़ का हमारी इकोनॉमी है ओडिशा की, 13th रैंक है लास्ट ईयर पे, प्लस 8.5% ग्रोथ हुआ है, से बड़ा है आपका। जीएसडीपी रेट कितना रहा है 5.3%, एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 20.4%, industry contribution is 43.3%, and service sector is 36.3%. Now let's see some of the maps also. See size of the state economy at the current prices. Current prices क्या होता है, GSDP at current prices means which includes the calculation of inflation. If we remove inflation, then it became constant prices and it become real GSDP. But if we see GSDP at current prices, means the calculation of inflation has been taken care of. So according to GSDP at current prices, last year size of economy of Odisha was 13। ये तो आप याद रख लें। Now you can see एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ओडिशा में और ओवरऑल इंडिया में, एग्रीकल्चर ओवरऑल इंडिया में कंट्रीब्यूट करता है टू इंडिया जीडीपी 17.7%, एंड ओडिशा का 20.4% है एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन। इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन ओडिशा में है 43%, ओवरऑल इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 27.6%। सर्विसेज का ओडिशा में है 36.3%, ओवरऑल इंडिया में इट्स 54.7%। तो कहीं पे आपसे इंडिया भी पूछ सकते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। नाउ लेट्स सी वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओडिशा इन टॉप 5 पर कैपिटा इनकम स्टेट। तो सबसे पहले आप देखें ओडिशा में 48% of the workforce, that is the people who are involved in the labor force participation, are involved in agriculture and the allied sector. 26% are involved in the industry and 26% in your services. And you can compare it with the state, few of the state where per capita income is very high. For example, your Tamil Nadu, you see the composition of the workforce, the agriculture sectors, the population in agriculture sector is less as compared to industry and the service sector. So इससे हमें क्या पता चलता है कि we need to shift from agriculture to the service and the industry sector in order to improve the per capita income of the state and its people. Now let's see per capita income of some of the top ranking states. ओडिशा की per capita income कितनी है, मीन्स एवरेज में जो उड़ीसा की हर इंसान की ऑलमोस्ट इनकम जो हम निकालते हैं, दैट इज 1,45,200
202, ये आपको अगेन यू हैव टू मार्क दिस अप, 1 लाख साल में 1,45,000 उड़ीसा का एक आदमी कमा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है? 1,69,496। एंड आप देखेंगे जो टॉप रैंकिंग स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है एवरेज, दैट इज तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा। तो ये टॉप 3 यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दिस इंडियाज पर कैपिटा इनकम। एंड इंडिया से 11th पोजीशन पे जो है हमारा उड़ीसा आता है, नेशनल एवरेज से नीचे उड़ीसा का आता है। बिहार का सबसे कम है 54, देन है यूपी योर 83। तो हमें टॉप 2 टॉप 3 इंडिया का, उड़ीसा का, दिस वी हैव टू रिमेंबर। नाउ मूविंग ऑन, द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल अभी कहाँ पे हुआ है? भारत मंडपम, दैट इज जो प्रगति मैदान में हमारा भारत मंडपम बनाया गया है दिल्ली में, वहां पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने अपना एक फेस्टिवल होस्ट किया है, सोलर फेस्टिवल। बेसिकली इन दिस फेस्टिवल पीपल of all the industry innovator policymakers have participated to give the boost to the solar production, solar energy adoption and its production to drive the renewable energy growth and build a sustainable future. So हमारे टारगेट्स हमें सोलर अलायंस के, और यू कैन से हमारा जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का, वी शुड नो इंडिया का पंचामृत में टारगेट है बाय 500 गीगावाट by 2030 has to be from your renewable energy source. अभी क्या है, इंडिया is dependent for its energy production for around 50% on fossil fuels, which is non-renewable. Now India wants कि 500 gigawatt तक हम एनर्जी जो प्रोड्यूस करें वो फॉसिल फ्यूल की बजाय नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी हो, दैट इज योर रिन्यूएबल बाय 2030। What is this International Solar Alliance? International Solar Alliance किसने इनॉग्रेट किया था? इंडिया फ्रांस ने in 2015. India and France together has launched this International Solar Alliance at United Nations Climate Change Conference, that was COP15, held at sorry, and it's an action oriented member driven sorry So International Solar Alliance ये कब बना था? It's an initiative of India and France. It was formed in 2015. तो ये हमें पता होना है, 2015 में बना था। At Unite, it was launched at UNFCCC conventions की Conference of Party meeting. It's an action-oriented, member-driven, collaborative platform to increase the deployment of solar energy टेक्नोलॉजीज। तो मींस इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है? आपका सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें बढ़ा के किसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी शेयर को और ऑल अक्रॉस द ग्लोब वी हैव टू इंक्रीज। इट इज गाइडेड बाय टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वी हैव टू इन्वेस्ट $1,000 billion इन सोलर एनर्जी बाय 2013। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है। प्लस वी हैव टू डिलीवर एनर्जी टू 1000 million people using clean energy solution. Also, we have to install 1000 gigawatt of solar energy capacity across the globe and to mitigate the global solar emission to the tune of 1000 million ton of कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1000 million ton का कार्बन डाइऑक्साइड हर साल कम करना है, 1000 गीगावाट का सोलर एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करना है, 1000 million पीपल का लिए हमें एनर्जी एक्सेस देना है, उनको कम से कम बिजली पहुंचे उनके पास, 1000 billion का इन्वेस्टमेंट लाना है। तो दिस इज योर टूवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी। एंड विजन क्या है? टू लेट अस टुगेदर मेक सन brighter and the mission every home no matter how far will have a light at home. तो ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं समटाइम्स कंफ्यूज करने के लिए 2-3 दे देंगे। आपको देखना है विजन पूछा है या मिशन पूछा है।
प्लस जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है, दैट्स द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, इट इज इन गुरुग्राम इन इंडिया. Now moving ahead, Sahkar se Samriddhi. Sahkar is your cooperatives. First thing we need to remember is 2025 has been declared by United Nations as a year for cooperatives. तो अभी हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन है, that is Amit Shah, he has addressed this Sahkar se Samriddhi conference and it's a international conference. पहली बार इंडिया में कोऑपरेटिव की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है एंड इट इज 102nd इंटरनेशनल डे कॉन्फ्रेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड कहाँ पे हुई है? गांधीनगर, गुजरात. एंड इट is a pioneer of the cooperative movement across the world. It's observed on first Saturday of July every year. तो cooperative day भी मनाया जाता है. कब मनाया जाता है? First Saturday of July every year. तो इस बार कब मना है? 6th July, which is a third foundation day of Ministry of Cooperation also. तो 3 साल हो गए हैं हमारी Ministry of Cooperation को आए हुए. उसी 6 जुलाई को हमने इंटरनेशनल कोऑपरेशन डे, ये आपसे डेज एंड थीम्स में पूछ सकते हैं. प्लस थीम क्या थी इस बार के डे की? कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल. इसी जो आपका फंक्शन हुआ था वहां पे वी हैव ऑल्सो लॉन्च भारत ऑर्गेनिक आटा. मीन्स जो ऑर्गेनिक आटा है बाय नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, एक हमारी कॉरपोरेशन है, उसने ये एक अपना इंडिया का ब्रांड लॉन्च किया है ऑर्गेनिक आटे का. नाउ कॉपरेटिव्स के बारे में कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हमें पता होना चाहिए. दैट इज बाय 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, दैट इज 2011 में 97th अमेंडमेंट एक्ट से वी हैव गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इट इज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(c), that is right to form cooperative as a fundamental right. तो आपसे आर्टिकल पूछ सकते हैं फंडामेंटल राइट, प्लस इट इज ऑल्सो इन DPSP, दैट इज फॉर प्रोमोटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. आर्टिकल कौन सा है? 43B. एंड अ न्यू पार्ट वाज आल्सो इंसर्टेड, पार्ट 9B, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग, रेगुलेटिंग एंड वाइंडिंग अप cooperative society. So these 3 provisions in the Constitution plus 97th Amendment Act are very important for your cooperatives. And this Amendment Act came into force on February 15, 2012. And 2025 is a year of cooperatives by UN General Assembly. तो ये cooperatives के बारे में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. Now next topic is Colombo Security Conclave. तो हर साल एक आपकी सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की मीटिंग होती है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. इट्स अ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द इंडियन ओशन स्टेट्स फॉर लुकिंग एट द सिक्योरिटी स्टेटस इन द इंडियन ओशन एंड वर्क विथ कोलैबोरेशन. तो अभी इसके कौन कौन मेंबर हैं? इंडिया, श्रीलंका, Mauritius and Maldives. Apart from this, abhi new member has been included, that is Bangladesh. Seychelles जो है हम वो ऑब्जर्वर स्टेटस है. तो इन द रिसेंट 8th डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग किसने होस्ट करी थी? मॉरिशस ने. उसमें बांग्लादेश को 5th मेंबर ऐड किया गया है. तो वी शुड रिमेंबर कि हु ऑल आर इट्स मेंबर. प्लस that it was agreed that 7th NSA level meeting was to be held in India later this year. Okay, so we can remember some few facts. एक्सरसाइज मैत्री हमारी एक्सरसाइज किसके साथ होती है? थाईलैंड के साथ. इट्स अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. इस बार कहाँ हुई है? इट हेल्ड इन वाचीकरपक्कम इन टाक प्रोविंस ऑफ थाईलैंड इन जुलाई. एंड इंडिया की साइड से we have sent battalion of Ladakh scouts, and from Thailand side the army has sent its contingent. So ये exercise किसके बीच में है? exercise मैत्री between India and Thailand.
Now next is Aditya L1 escape spacecraft. So India has successfully completed its first halo orbit around the sun Earth L1 point. तो हमारा एक स्पेस क्राफ्ट है, एक मिशन है इसरो का आदित्य L1. ये आपका सन के अराउंड चक्कर काटेगा. That is your halo orbit. Halo orbit is the sun orbit. And it is placed at L1 point. अब ये L1 point बहुत इंपॉर्टेंट है, लैग्रेंजियन पॉइंट. क्या होता है? Suppose if this is Earth, this is sun, and we have to send a satellite towards this side. तो एक पॉइंट आता है, ये 5 पॉइंट्स होते हैं सन और अर्थ के बीच में, जहां पे आपकी सैटेलाइट अपने आप बैलेंस हो जाती है. Suppose if it is a orbit, halo orbit, and satellite is moving here, then automatically this satellite will be balanced. How? Due to the balancing of the gravitational force of the earth and the sun at this point. So there are such 5 points, and these points are called Lagrangian points. And this is point number 1. So at point number 1, we have sent this Aditya L1 spacecraft. तो हमें पता चलना, अब ये होना चाहिए लॉन्च डेट क्या है, सितंबर 2023, 2 तारीख को हमने इसको भेजा था. एंड दिस हैज कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट हैलो ऑर्बिट राउंड. दिस मिशन का पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है अराउंड द L1 point. Next is, which state assembly recently passed Aparajita Women and Child Bill 2024 for women safety? West Bengal, Odisha, Gujarat, Rajasthan. आप नाम से भी पता लगा सकते हैं. It's West Bengal, and recently very horrific incident took place at West Bengal. West Bengal Assembly has unanimously passed this Aparajita Women and Child Bill, that is Criminal Laws and Amendment 2024, marking a significant development in the state's legal framework against the sexual crimes. Next topic is, Odisha plans to bring 12 tigers to Satkosia with NTCA approval. अभी क्या है कि NTCA ने एक हमारा रीओलोकेशन प्रोजेक्ट चल रहा था कि हम सतकोसिया में टाइगर को लेके आएंगे, ठीक है, बट दैट हैज बीन पुट टू हॉल्ट ड्यू टू सम डेथ ऑफ सम टाइगर्स. नाउ अगेन दैट प्रोजेक्ट हैज बीन रिवाइव्ड and the NTCA has again given the approval to resume the program to bring tigers into the relocation project into the Satkosia Tiger Reserve from Kanha National Park in MP. तो अब जो पहले एक टाइगर लाए गए थे सुंदरी एंड महावीर, उनमें से एक की डेथ हो गई थी, तो ये प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया गया था. नाउ अगेन बोला गया है कि हाँ, आप कान्हा नेशनल पार्क जो कि MP में है, आप सतकोसिया में टाइगर्स ला सकते हैं. कितने टाइगर आ रहे हैं? 12 टाइगर. किसने अप्रूवल दिया है? NTCA. NTCA क्या है? इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005. एंड किस एक्ट के अंदर बनी है? इट इज नॉट फॉर्म्ड अंडर योर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इट इज फॉर्म्ड अंडर योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें 26 में आपका अमेंडमेंट आया था. 2006 में एक अमेंडमेंट आया था इस एक्ट में, जिससे आपकी NTCA बनी थी, जिसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहते हैं. इट वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स ऑफ 2005. सो वी शुड रिमेंबर द फैक्ट्स अबाउट दिस NTCA. Our next topic, Juang tribals of Odisha's Jajpur district have become the 5th particularly vulnerable tribal group in the country to receive habitat rights under the Forest Rights Act. Again, this Forest Rights Act has been in news so many times. So, इसके तो facts हमने जो पहले देखे हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं. अभी जुआंग ट्राइबल जो है कहाँ से हैं? जजपुर डिस्ट्रिक्ट के, ओडिशा से. ये याद रखना. इनको हैबिटेट राइट्स दिए गए हैं इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर. बाकी और किस किस को दे रखे हैं? फर्स्ट मिले थे हमारी भरिया ट्राइब ऑफ MP, कामर ऑफ छत्तीसगढ़, बेगा ऑफ छत्तीसगढ़, एंड पौड़ी भूया ऑफ ओडिशा. नाउ रिसेंटली they have been allotted to Juang tribal also. Now we should also know
व्हाट इज पीवीटीजीज? देखो हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन का 8.6% पीपल मेक्स अप द ट्राइबल पॉपुलेशन, बट amongst these tribal there are also certain groups which are more vulnerable, and these groups are called particularly vulnerable tribal groups due to certain characteristics. And these are, what are these characteristics? That these are homogeneous, they are very small population, they are physically isolated, they have absence of any language, they have relatively simple technology and slow rate of change. So these are the characteristic features of pvtgs. तो इंडिया में ये कैटेगरी कब बनी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ घेबर कमीशन 1973, and in 2006 this PTG category was renamed as PVTGs. इंडिया में कितने PVTGs ग्रुप है? 75। मैक्सिमम कहाँ पे? ओडिशा में। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में भी आया हुआ है। तो अभी एक कौन सी जुआंग ट्राइबल पीवीटीजी ट्राइबल ग्रुप को हमने हैबिटेट राइट्स दिए हैं अंडर योर फॉरेस्ट राइट एक्ट्स। कितने परसेंट पॉपुलेशन वी हैव? ट्राइबल पॉपुलेशन 8.6%। सो रिमेंबर दीज फैक्ट्स। मूविंग ऑन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और द बेनिफिट्स? हैबिटेट राइट मिलने से क्या फायदा होगा? उनको पहली चीज लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा, जो जहां वो जंगल में रहते हैं वहां उनके जो घर हैं उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ओनरशिप मिलेगी। Plus they can collect their produce, they can sell it, they are dependent on forest resources, so they can protect those forest resources. It will help in empowering these forest communities to protect their natural environment, as well as it will address the historical injustice commenced by your Britishers or the other people. तो उनकी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनको एक प्रोटेक्शन मिलेगी, एंड दे कैन फर्दर ग्रो एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज पुरी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा हैज बीन सिलेक्टेड एज वन ऑफ द 5 लोकेशन टू पायलट अ स्टेट ऑफ आर्ट एडवांस इमरजेंसी केयर सिस्टम। तो पुरी को सिलेक्ट किया गया है ओडिशा से, जहां पे इमरजेंसी केयर सिस्टम आएगा। Now, what is this emergency care system? ICMR has decided to launch some state-of-art care systems centers across the nation, जिससे कि to reduce the preventable and treatable mortality rates in the country. जैसे कि कुछ डिजीज होती है, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक, ट्रॉमा, स्नेक बाइट, these can be easily dealt and prevented and the mortality can be reduced. So, but we lack the advanced facility. So for that ICMR has started this project of placing the state of art advanced emergency care system. And कहाँ पे आ रहे हैं? 5-6 लोकेशंस पे आ रहे हैं। उड़ीसा में पुरी में आ रहा है, अक्रॉस 5 डिस्ट्रिक्ट, पुरी इन उड़ीसा, ये आपको याद रखना है। लुधियाना, विदिशा इन एमपी, वडोदरा इन गुजरात, पुडुचेरी। तो पुरी इन उड़ीसा, ICMR has launched EMS facility. Now next is E-CHASA project. It's a digital crop survey initiative of Odisha government. So it is first of its kind. Odisha is the first state to digitally adopt crop survey policy in the field of agriculture. तो इससे क्या होगा? आप कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड है तो डिजिटली उसको सर्वे कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना क्रॉप आया है, कौन सा क्या यील्ड है, कितना एरिया है, क्या क्रॉप टाइप है। तो ये एक उसके लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है, सर्वे इनिशिएटिव लिया गया है। द डेटा विल बी कलेक्टेड यूजिंग स्मार्टफोन्स, मेकिंग द प्रोसेस मोर एफिशिएंट, एंड वो एक रिकॉर्ड भी स्टैब्लिश हो जाएगा। तो ई-चासा क्या है? डिजिटल क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट। Udia space scientist Dr. Digendranath Swain was conferred Rashtriya Vigyan Puruskar Vigyan Yuva Shanti Swarup Bhatnagar for the year 2024 in the space science and technology. तो ये हमारी किसने दिया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने हैज गिवन दिस शांति स्वरूप विज्ञान युवा कैटेगरी में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड टू
उड़िया स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर दिगेंद्र नाथ स्वैन। सो विच कैटेगरी? विज्ञान युवा कैटेगरी। बाकी 33 अवार्ड्स भी मिले हैं, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स, इन अदर कैटेगरी लाइक विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान टीम। तो हमारे दिगेंद्र नाथ स्वैन जी डॉक्टर को दिया गया है विज्ञान युवा कैटेगरी में। ओडिशा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द सुभद्रा योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 1 करोड़ वुमेन इन द स्टेट। ये हमने बजट में भी देखा था, 10,000 करोड़ का आपका अलॉटमेंट, दिस इज करोड़, सॉरी 10,000 करोड़ दिए गए हैं बजट में भी। सबसे ज्यादा एलोकेशन हुआ है इस स्कीम को। सुभद्रा योजना है, वुमेन एम्पावरमेंट की स्कीम है उड़ीसा गवर्नमेंट की। इसमें क्या होगा, साल में आपको 10,000 रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में वुमेन को मिलेंगे। कौन सी वुमेन एलिजिबल है? ये एज ग्रुप इंपॉर्टेंट है, 21 से 60 ईयर्स की वुमेन आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम, बट the beneficiary list will be prepared by the women and the child development, and इसके अकॉर्डिंग कितने बेनिफिशियरीज है? 79.14 lakh beneficiaries, that is 79.14 lakh women. तो we should also remember कितने बेनिफिशियरीज है, अमाउंट कितना मिलेगा? 10,000। कैसे? 5-5 हजार करके एक साल में। कौन सी योजना है? सुभद्रा योजना। बजट में कितना एलोकेशन है? 10,000 करोड़। एंड किन किन को नहीं मिलेगा? जिनके पास कोई 4 व्हीलर है या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या ऑलरेडी किसी स्कीम में कवर्ड है, तो दे विल नॉट बी गिवन सच अमाउंट। Apart from this, Odisha government has announced the recipient of prestigious Biju Patnaik Sports Award for the year 23-24. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड इस बार के अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैटेगरी में मिला है हमारे लाजरूस बर्ला को। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट्स एंड गेम्स, सी दिस इज फैक्चुअल, दिस यू हैव टू टोटली रिमेम्बर, रटना है एंड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला होता है, दैट इज लाजरूस बर्ला। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में किशोर कुमार जेना। बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स में मिला है नालको को, एल्यूमिनियम कंपनी जो है। एक्सीलेंस इन कोचिंग मेल कैटेगरी विजय कुमार लकड़ा। एक्सीलेंस इन कोचिंग फीमेल कैटेगरी रूपन विता पांडा। बेस्ट पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर मोहम्मद जफर इकबाल। अपकमिंग एथलीट कैटेगरी जूनियर में प्रीति स्मिता बोई, जिनको हमने पहले भी देखा था वेट लिफ्टिंग में, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में भी इन्हें अवार्ड रिकॉर्ड मिला है। एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म सुकेश रंजन बेहरा। बीजू पटनायक ब्रेवरी अवार्ड रुद्र प्रसाद मलिक। एंड ईच अवार्डी विल बी गिवन कितना अमाउंट? 2 लाख ईच। तो ट्रॉफी सर्टिफिकेट के साथ साथ 2 लाख मिलेंगे। किशोर जीना को मिले हैं हमारे कितना? 3 लाख किशोर जीना जी को। लाजरूस को जो अचीवमेंट बेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट में उनको मिले हैं हमारा 4 लाख। एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किशोर जीना को 3 लाख। बाकी सबको कितने मिले हैं? 2 लाख रुपए प्लस द अवार्ड। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीति स्मिता बोई इंपॉर्टेंट है, इन्हें और भी रिकॉर्ड मिला है। कोचिंग वाला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नालको कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट for the contribution and promotion of the sports. So very important awards this time. Okay, एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है। Now next is side program. किस मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी so has launched this scheme site program for the promotion of ग्रीन हाइड्रोजन। तो हमने एक तो हमारा है नेशनल हाइड्रोजन मिशन, एक जिसके अंदर हमने ग्रीन अमोनिया भी बनाया। प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ पे? पारादीप में, दैट वी हैव आल्सो सीन। नाउ दिस इज साइट प्रोग्राम। इसके अंडर हम क्या बना रहे हैं? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी। उसके लिए गाइडलाइंस अभी रिसेंटली इशू करी गई है MNRE से टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये स्कीम किसके लिए है? दिस यू हैव टू रिमेम्बर, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोग्राम। तो ये आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है।
Now next is hydrogen fuel cell vehicle produce one of the following as exhaust. See, this was UPSC 2024 question. ये तो मतलब बेसिक है बिल्कुल ना. हाइड्रोजन फ्यूल में क्या बनता है, तब H2 है बनेगा, तो आपका क्या बनेगा, वाटर. H2O2 बनाता है H2O. ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते. नन्हे फरिश्ते किसके हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स. दिस रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स of Indian Railways has launched this operation Nanhe Farishte. So the children who are, all are traveling or staying at the railway station and by chance they get lost or like in the or they find themselves in some dangerous situation, then this force has started this operation Nanhe Farishte to protect them and take them to the district child welfare committee and then take to their rescue them with their family. So this is also important. Cherai मैदान, ये क्या है, हमारे आसाम में बरियल माउंट्स हैं, जिसको रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है. लिस्ट में इंडिया से ऐड हुआ है. देयर आर 20 burial mounds in Assam that have been recognized as UNESCO World Heritage Site, marking a significant milestone. तो अहोम डायनेस्टी है थी जिसने राज किया था 13 से 18 सेंचुरी में आसाम में. सो उनके जितने भी एंसेस्टर्स थे, दे वर बरीड इन द माउंट्स एंड दीज माउंट्स आर वेरी सेक्रेड एंड इवन प्रेड टुडे. सो that's why this have been declared as UNESCO World Heritage Site. This marks that हमारे यहाँ today आज 43 UNESCO World Heritage Site बन गई हैं after addition of this Chiraida Moida site. Now travel and tourism development index, ये किस कौन लॉन्च करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें इंडिया की रैंक 39th अपग्रेड हुई है फ्रॉम टू 15th पोजिशन, आप जंपिंग 15 पोजिशंस. इंडिया की रैंक 54 थी 2021 में, 2024 में इंडिया की रैंक 39 हो गई आउट ऑफ 119 कंट्रीज में से. तो इट्स अ सिग्निफिकेंट जंप. और ये कौन लॉन्च करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. टूरिज्म में इंडिया का क्या शेयर है, 1.47% ऑफ द ग्लोबल मार्केट ऑफ द टूरिस्ट इंडिया हैज वेलकम्ड दिस ईयर. एंड वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहाँ जाते हैं, यूएस में. एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, एक इंटर गवर्नमेंट, इट्स अ इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. इट्स नॉट अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. कहाँ पे इसका बेस्ड है, इज बेस्ड इन जेनेवा कॉलोनी स्विट्जरलैंड. एंड इट इज, ये भी आ जाता है क्लॉस श्वाब, वेरी फेमस नेम, जर्मन इंजीनियर. he has established this organization in 1971. Now India at 2024 समर ओलंपिक, इससे तो एक क्वेश्चन बनता ही है. समर ओलंपिक इस बार कहाँ हुए थे, पेरिस फ्रांस में. इंडिया ने कितने लोगों को भेजा था, कितना बड़ा कॉन्टेंजेंट था, ये पूछ सकते हैं. 117 एथलीट्स को भेजा गया था इंडिया से. इंडिया का ये 26th अपीयरेंस था इन द ओलंपिक्स. सबसे पहली बार इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था, 1900 में पहली बार. एंड इस बार इंडिया ने अपना हाउस होस्ट किया है, इनॉग्रेट किया है बाय रिलायंस फाउंडेशन एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, दिस टाइम इंडिया हैज वन 6 मेडल्स, 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज. तो देखते हैं क्या क्या है हमारे. मनु भाकर in the category of shooting has won bronze in women 10 meter air pistol. Then Manu Bhakar and Sarabjot Singh again shooting में mixed team 10 meter air pistol bronze. स्वप्निल कुशाले men 50 meter rifle 3 position shooting bronze में bronze मिला है इन्हें. टीम इंडिया को मेंस इवेंट में हॉकी में ब्रॉन्ज मिला है, हमारी हॉकी की टीम को. नीरज चोपड़ा ने सिल्वर लिया है जेवलिन थ्रो में, एथलेटिक पाकिस्तान के ने जो ये बहुत इवेंट हाईलाइट हुआ था, पाकिस्तान के एथलीट ने को मिला है गोल्ड. अमन शेरावत मेन फ्री स्टाइल 57 kg कैटेगरी में रेसलिंग में लाए हैं ब्रॉन्ज. सो इनका नाम हमें याद रखना है. नेक्स्ट इज गुरु केलुचरण मोहापात्रा अवार्ड 2024 किसको मिला है, ओडिसी डांसर्स कुमकुम लाल को. वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं.
डांस कैटेगरी, कल्चर कैटेगरी में गुरु लक्ष्मीकांत पलित एंड गुरु धनेश्वर स्वयं विल बी ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन म्यूजिक एंड परकर्शन में रिस्पेक्टिवली। तो गुरु धनेश्वर को मिला है हमारे परकर्शन में, ललित लक्ष्मीकांता पलित को मिला है म्यूजिक कैटेगरी में, ओडिसी डांस में मिला है गुरु केलुचरण अवार्ड, कुमकुम लाल। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट। इन द फील्ड ऑफ सिनेमा द अवार्ड हैज बीन गिवन टू उत्तम मोहिंती। सो ये इनको सबको क्या दिया जाएगा, 1-1 लाख का कैश प्लस साइटेशन। तो गुरु केलुचरण मोहपात्रा युवा प्रतिमा सम्मान 25,000 का होता है, मीन्स 4 आर्टिस्ट को मिलता है 25,000 ईच, 1 लाख टोटल। एंड बाकी सबको 1-1 लाख मिला है इन कैटेगरीज में। डांस में मिला है कुमकुम लाल को, म्यूजिक में गुरु लक्ष्मीकांता पलित, इन परकर्शन वी हैव गिवन टू गुरु धनेश्वर स्वयं, सिनेमा में उत्तम मोहंती वेटरन एक्टर। सो ये हमें याद रखना है। संजुक्ता सेठी, a 55-year-old nursing officer at the district headquarter hospital in Malkangiri, was conferred with the National Florence Nightingale Award 2024 by President Draupadi Murmu at the ceremony held at Rashtrapati Bhavan. तो संजुक्ता सेठी को for dedicating 24 years of her life to hospitals OT for the selfless service and care, she has been given Nightingale Florence Award and National Florence Nightingale. It's a prestigious award given for the nursing services, nursing personnel in India. तो इस बार मिला किसको है, संजुक्ता। एंड कौन देता है, किसने स्टार्ट किया है, by Ministry of Health in 1973. This award was begin. Now next is Western Odisha, including Sambalpur, is facing surge in scrub typhus cases, a bacterial infection to by mite bites. तो कैरियर ये पूछ सकते हैं, स्क्रब टाइफस क्या है, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज, किससे होता है, माइट बाइट से। तो अभी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं स्क्रब टाइफस के केसेस वेस्टर्न ओडिशा में। तो दिस वी हैव टू रिमेम्बर, इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। Now first biobanking facility of critical species at the सिटी जू, तो नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में हम एक सिटी जू बनाएंगे जिसमें बायो बैंक फैसिलिटी बनाएंगे। बायो बैंक फैसिलिटी मींस जैसे हम एक्सी2 एंड एनसी2 टाइप का कंजर्वेशन होता है, एक होता है इनसी2, एक होता है एक्सी2। इनसी2 में आपका जहां पे भी स्पीशीज कोई भी रहती है वहीं, फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वी कंजर्व देम एट देयर प्लेसेस। एक्सी2 मीन्स इन सम banks, gene banks, there we conserve the species. So certain critical species means that are on the verge of extinction, for them a new biobanking facility has been opened in Nandankana Zoological Park. There we will preserve at around -180 degree, very cold temperature, cryopreservation technique कहते हैं इसको उनके सैंपल्स, उनके जीन्स को प्रिजर्व करेंगे हम, इन स्पीशीज के डीएनए को, जो भी लग रहा है कि हाँ ये स्पीशीज की डाइवर्सिटी कम हो रही है और उनका डीएनए आरएनए प्रिजर्व करना है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। कहाँ पे ये फैसिलिटी आ रही है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में। इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बायोबैंकिंग फैसिलिटी फॉर द क्रिटिकल स्पीशीज। नाउ इंडिया हैज रिसेंटली रिसीव्ड its second nuclear submarine commissioned by our defense minister राजनाथ सिंह। तो किसने कमीशन किया है, यूजुअली ये भी पूछ लेते हैं, ये जो सेरेमनी हुई थी। एंड कौन सी, सेकेंड न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन, एंड द नेम इज अरिघात S3 टू इम्प्रूव द सेकेंड स्ट्राइक केपेबिलिटी। सेकेंड स्ट्राइक केपेबिलिटी क्या होती है, सपोज किसी कंट्री ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया, देन वी शुड बी इन पोजिशन टू गिव the counter attack. That capacity is called second strike capability to। तो ये second strike capability कैसे होगी, जब हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड होगा। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है, that we can attack either from the land, air or water। तो वाटर के सेक्शन में we have launched this second nuclear missile submarine। ठीक है, this is INS अरिघात S3।
Now, world's first Asian king vulture conservation center has been recently inaugurated in Uttar Pradesh. तो ये कहाँ पे आया है? जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इन भारी वैसी कंपी रेंज ऑफ गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन। तो एशियन किंग वल्चर के लिए पहला दुनिया का ऐसा कोई सेंटर बनाया जा रहा है। इट्स अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द वल्चर एंड ये यूपी में आया है, गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन में, फॉर द रेड हेडेड वल्चर। ये कुछ ऐसे दिखती है, रेड कलर का इसका हेड होता है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव, ये यूनियन मिनिस्टर श्री ज्योतिराव सिंधिया, that is also the union minister for communication as well as the minister for the donor, that is northeastern region. He has recently launched this Ashtalakshmi Mahotsav. ये किस लिए है? एट सिस्टर्स किसे कहते हैं? द 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कल्चर, उनकी इकोनॉमिक रिचनेस को इंक्रीज करने के लिए ये महोत्सव, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है इन दिल्ली फ्रॉम 6 to 8 दिसंबर। तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव किस लिए है? विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और द 8 सिस्टर्स, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नाउ नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी लॉन्चेस प्रोजेक्ट नमन स्पर्श इनेबल्ड सर्विस सेंटर नेशन वाइड। अब ये प्रोजेक्ट नमन किसका है? वी शुड रिमेम्बर इट्स ऑफ इंडियन आर्मी। क्यों है? फॉर दी सपोर्ट टू दी डिफेंस पेंशनर वेटरन्स एंड देयर फैमिली। तो डिफेंस के जितने भी लोग होते हैं उनकी फैमिली तो यही रहती है, डिफेंस के लोग बॉर्डर पे रहते हैं, प्लस कई बार वो शहीद हो जाते हैं तो उनकी जो फैमिली को पेंशन प्रोवाइड करना, उनकी केयर करना, तो सच टेक केयर के लिए ये प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? आर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने। तो ये लॉन्च कौन करता है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई स्पीशीज हैज बीन डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु and the name of this species is southern birdwing and it's a very huge species of 190 millimeter and जो size होता है वो फीमेल का बहुत बड़ा होता है यूजली। so this southern birdwing usually western घाट से ही we get this butterfly species, तो it's a very bright yellow and black color species। तो इंडिया की सबसे सेकेंड लार्जेस्ट स्पीशीज है। नाउ नेक्स्ट इज साइक्लोन दाना आया था, हमने देखा था, इट हैज फॉल अराउंड, इट हैज मेड अ फॉल अराउंड धमरा पोर्ट एंड द भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो कौन सा है? इट्स अ फर्स्ट साइक्लोन द इन द पोस्ट मानसून season and it's a third cyclone that has formed in North Indian Ocean region and second to make landfall after Remal। साइक्लोन रेमल आया था, अब रेमल के बाद एक साइक्लोन आया है दाना, और साइक्लोन दाना को दाना नाम किसने दिया है इस बार का? कतर ने। और नेमिंग हमें पता होनी चाहिए, नेम क्या होता है? दाना का मतलब है जेनरोसिटी, तो साइक्लोन नेमिंग सिस्टम हमें पता होना चाहिए। तो पहले जो बिगिन हुआ था 1800s में नेमिंग सिस्टम, दैट हैज बिगिन ऑन द रोमन सेंट्स के नाम पे, कैथलिक करेंडेंट से। फिर वर्ल्ड वॉर के नाम के बाद फीमेल नेमिंग सिस्टम हुआ। देन 79 में जेंडर बायस को खत्म करने के लिए वी हैव started with the male female both names, but 2000 से WMO has established a new naming system practice in North Indian Ocean region, जिसमें there is a body called Tropical Cyclone Regional Body जो कि WMO के अंडर आती है। उसमें 13 कंट्रीज हैं जो हर कंट्री अपना नेम देती है, और जब भी रोटेशन वाइज, सपोज इस बार आपका कतर ने दिया, अगली बार सऊदी अरेबिया नेम देगी, उसके बाद यमन देगा, अल्फाबेटिकली रोटेशन वाइज सबके नाम चूज होते हैं जो भी साइक्लोन आता है एंड साइक्लोन को नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इज मेलानिस्टिक ब्लैक टाइगर सफारी इन बरीपाडा, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे ब्लैक टाइगर सफारी आ रही है उड़ीसा में? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन बरीपाडा। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। तो अभी सेंट्रल जू अथॉरिटी ने ये अप्रूवल दिया है दैट वी विल बी बिल्डिंग दिस मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, बट अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट से
परमिशन नहीं मिली है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम टाइगर्स लाएंगे नंदनकानन जू से, एंड दे विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। नंदनकानन जू हैज बीन वेरी मच इन न्यूज, तो हमें ये पता होना चाहिए नंदनकानन जू इज द फर्स्ट जू दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ वाजा। वाजा क्या है? हमारा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम्स। तो जो भी बहुत अच्छी जू होती हैं कंट्रीज की, उनको ही इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाया जाता है। तो इंडिया से कौन सी जू जो पहली बार वाजा में गई थी? दैट इज नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। ये भुवनेश्वर से नॉर्थ में है एंड कटक एंड भुवनेश्वर के बीच में आती है। ओके, नेक्स्ट इज एक पेड़ माँ के नाम। तो उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी ने ये मिशन, एक कैंपेन हुआ था एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का, उसमें पार्टिसिपेट किया एंड कहाँ पे एक सैपलिंग लगाया? रायकाला विलेज इन कंझर डिस्ट्रिक्ट। तो ये नाम आपको याद रखना है, कहाँ से स्टार्ट किया, किसने लॉन्च किया उड़ीसा में एक पेड़ माँ के नाम? बाय आर बाय आर चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी। तो इसमें क्या होगा? बेसिकली इंस्टीट्यूशन, पर्सनल कॉन्शियसनेस, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन थ्रू ट्री प्लांटेशन, दीज विल बी डन। ट्री प्लांटेशन होगा। नाउ मूविंग ऑन, ओडिशा फर्स्ट बोन बैंक। तो ओडिशा में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर मुकेश मालिक जी ने एक बोन बैंक इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पे। वेरी इंपॉर्टेंट, बोन बैंक कहाँ आ रहा है? एंड इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बोन बैंक इन ओडिशा। जो भी पेशेंट्स को बोन मैरो की दिक्कत या बोन डैमेज या फेल्ड रिप्लेसमेंट और सम सॉर्ट ऑफ सर्विस बोन रिलेटेड चाहिए होती हैं, एंड बोन ग्राफ्टिंग, सर्जिकल प्रोसेस, रिकवरी टाइम, तो उनके लिए ये बैंक इस्टेब्लिश किया गया है। बोन में डोनेशन भी होती है, डोनर बोन्स होती हैं, चाहिए होती है पेशेंट्स को, उनके लिए एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ओडिशा का पहला बोन बैंक लाया जाएगा। यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट हैज रिसेंटली अपग्रेडेड टू ₹5 लाख बाय आरबीआई। इट वाज अर्लियर ₹1 लाख। एंड यूपीआई सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है, दैट हैज स्टार्टेड बाय योर एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन 2008 अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। तो एनपीसीआई का ही है यूपीआई, एंड यूपीआई की अब लिमिट कर दी गई है 5 लाख फॉर टैक्स पेमेंट, हॉस्पिटल एंड एजुकेशन सर्विसेज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सो दिस वी हैव टू लिमिट, we have to learn this new limit. Earlier it was 1 lakh. DRDO's वशुरैट्स फ्लाइट टेस्ट। वशुरैट्स क्या है? हमारा राजस्थान में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। मैन पोर्टेबल, मैन अपने हाथ में एक गन लेके एयर डिफेंस सिस्टम शॉर्ट रेंज में न्यूट्रलाइज कर सकता है लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स। एरियल थ्रेट्स मतलब जो नीची जो नीची हाइट पे जो आने वाले, जहां से आने वाले एरियल थ्रेट्स होते हैं, दैट इज दुश्मन के गोले, वो न्यूट्रलाइज किए जा सकते हैं बाय दिस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसको लॉन्च किया है, इसकी टेस्ट फ्लाइट की गई है डीआरडीओ द्वारा इन राजस्थान, इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ लैब्स एंड रिसर्च सेंटर इमारत इन हैदराबाद। देबल्या योजना, देबल्या योजना हमारी क्यों है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी लाई गई है। इससे पहले एक और योजना थी देबल्या जैसी, दैट इज कॉल्ड आबाद। तो ये योजना क्या होती है? देबल्या फॉर दी होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव फॉर दी प्रिजर्विंग एंड इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ दी टेम्पल एंड दी मठ्स। जितने भी टेम्पल्स है हमारे, उनके आसपास की लोकेशंस, उनमें बेसिक एम्यूनिटी प्रोवाइड करना, हेरिटेज आर्किटेक्चर बेटर करना, रिपेयर वर्क करना, प्लस और सिक्योरिटी और मैनेजमेंट बेटर करने के लिए ये योजना लाई गई है। देबल्या, देव मतलब गॉड, तो वी शुड रिमेम्बर गॉड का जगह कहाँ है? टेम्पल एंड मठ्स। तो देबल्या योजना हैज बीन ब्रॉट फॉर द होलिस्टिक कंजर्वेशन preservation of the temples and mosques across the state. Earlier there was another scheme called ABAG, but that was only focusing on the repair work. ऑल ओडिशा एलिफेंट सेंसस विंटर सीजन वाला कंप्लीट हो गया है,
and its data has been made public. Accordingly, Odisha is now, some key findings we can see that Odisha is now home to 2103 elephants, and there has been a shift in the gender ratio also. The male to female to young ratio changed to 1.283 to 1.08, from 1 to 1.25. So means male adults, some male adults may we have seen a increase. Plus significant migration has increased from Jharkhand, West Bengal, Andhra Pradesh and Chhattisgarh during the winter season. As well as we have seen that regional concentration सबसे ज्यादा कहाँ है, देनकनल में, केंझार में एंड अतयगढ़. ये डिस्ट्रिक्ट आपको नाम याद कर लेना है. और कहाँ पे कोई एलिफेंट नहीं मिला है, कोरापुट, जयपुर, मलकानगिरी. Mortality 48 deaths reported since May 2024. So these was the all Odisha elephant census facts. Odisha Center for Elephant Conservation. ओडिशा में कहाँ पे आया है ये सेंटर, चंदाक वाइल्ड लाइफ डिवीजन. ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद IUCN and WTI we are establishing Odisha Establishment Center for Species Revival of Asian Elephants near Bhubaneswar in Chandak Wildlife Division. तो एक एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए सेंटर बनाया जा रहा है. कहाँ पे, भुवनेश्वर के पास, चंदाक वाइल्ड लाइफ डिविजन में. कौन स्टैब्लिश कर रहा है, IUCN एंड WTI. दैट इज वी नीड टू नो. उड़िया लिपि, उड़िया लिपि अभी लॉन्च की गई है. उड़िया एक वर्चुअल एकेडमी लॉन्च करी है कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा ने, दैट हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस न्यू लिपि, उड़िया लिपि. तो इससे क्या होगा कि जितनी भी हमारी डिवाइसेस हैं, विंडो, मैक, INX, लाइनेक्स एंड एंड्रॉइड, इसमें ऑटोमेटेड ये एक फॉन्ट की तरह उड़िया लिपि आ जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दिस कंपैटिबिलिटी सारी विंडोज में है. ठीक है, सारे डिवाइसेस में रहेगी, मैक हो, iOS हो, लाइनेक्स हो, एंड्रॉइड हो. प्लस इट विल इंक्लूड द एंटायर उड़िया अल्फाबेट ऑल्सो फ्रॉम बारना बोधा along with numeral, matra, phalas and conjuncts. Plus 4 keyboard layout are there, phonetic, typewrite, InScript and easy option for the user. So basically क्या किया गया है, कल्चरल डिपार्टमेंट ने एक उड़िया लिपि को compatible with all the devices and multiple format has been launched so as to make this lipi and the easy user access easy for the people. So that was all in today's discussion. Thank you very much.